Good morning, children. Welcome back to English class. So, we were on chapter number 13, A Winter's Night. We were on page number 98. We had to start it today. So, before proceeding any further, let us all just recall what we had done in our last class. The first part of the chapter, we'll just revise about it. So, there was a husband and wife, Halku and Munni. They were both very economically, they were not very sound. So Munni had saved some money so that they can buy a blanket for her husband Halku, because he had to spend his night in the fields, and January was a very cold month. So he needed a blanket to stay out in the fields a whole night. So there was blanket needed, and he was not having a blanket. So the money which was saved for blanket was to be given to the landlord, because they had to pay the rent to the landlord. And Halku was a tenant farmer. Whatever he earned, he had to, most of the part was given to the landlord. So his wife also is saying that you just give up this tenant farming. Why don't you do a work for yourself, so that we can have enough food to eat? At least we can अपने आप का तो ध्यान हम रख पाएंगे कम से कम इतना आप. So she wanted Halku to give up that tenant farming. So we'll begin further. Now it was a cold night. Halku and Jabra, Jabra was Halku's dog, and they both were outside in the field. It was very cold. It seems that even stars were feeling cold and they were shivering. This was just the imagination of the writer. Jabra, Halku's dog, was sitting under Halku's cot. Cot is what? Charpai. He was sitting under the cot, but he was feeling very much cold, and both were not able to sleep. Why they were not able to sleep? Because of the harsh weather. It was very much cold. So Halku is waiting. Halku is wondering how much of the night is still left. कब सुबह होगी? कब? He is thinking कब मैं घर पे जाऊँगा? What I'll do next? So, but still it was 3 hours to go. So what he does is वो थोड़े पत्ते ऑर्चर्ड फार्म में से इकट्ठे करता है और उनको आग लगाकर कुछ अपने आप को, खुद को और जाबरा को थोड़ी गर्मी देने की कोशिश करता है. सो ही पुट्स ऑन द फायर so that they both can at least survive, because he felt it was becoming very much difficult for him to survive in that cold weather, and he was only having one shawl. That shawl was not able to completely cover him, give him warmth. Enough warmth was not given by that shawl. He was not having a blanket because the money which was saved for blanket was already given to the landlord. We'll proceed further. Page number 98. I hope you all are reading and you all are having a pencil in your hand. Halku said, I couldn't stand it anymore. Halku said, I couldn't stand it anymore, Jabra. मैं और ज़्यादा इस सर्दी से अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ. So come along. Let's go into the orchard and gather leaf to warm up with. He's saying, चलो हम उस आम के बाग में चलते हैं और वहाँ से कुछ पत्ते इकट्ठे करके लाते हैं, so that we can put on fire. When we are tossed, we'll be back and sleep. तो जब हम थोड़े गर्म हो जाएंगे, we'll come back here and we'll sleep. Under the tree, it was pitch dark. तो उन पेड़ों के नीचे बहुत एकदम घना अंधेरा था. The bitter wind blew. और एक सर्दी की जो हवा होती है बेटा, वो इतनी आपको ठंडी होती है कि इट्स फील्ड bitter is actually कड़वा. तो that wind also was feeling bitter. Buffeting the leaves, वो पत्तों को ऐसे लहरा रही थी. And the drops of dew drip from the branches. तो ओस की जो बूंदें थी वो ऊपर से गिर रही थी उनके ऊपर. Jabra had found a bone and he was chewing on it. जबरा को एक हड्डी मिलती है कहीं से और वो उसको चबा रहा था. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. तो हल्कू आग जलाता है और कुछ पत्ते इकट्ठे करने लगता है. In a little while he had a great heap. थोड़ी देर में उसने बहुत अच्छा हीप लगा ली. हीप होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करके उसका ढेर जैसे हम बना लेते हैं. That was heap. His hands were frozen.
his bare feet numb. उसके हाथ इतने ठंडे हो चुके थे as if it seemed that they were frozen, and his bare feet numb. Numb is सुन्न होना. तो उसके नंगे पैर थे. He was not having shoes also, no slippers he was having. So the feet also were numb. He piled up a regular mountain of the leaf, and by lighting down he'd burn away the cold. उसको लगा कि चलो वो अच्छा उसने इकट्ठे कर लिए हैं पत्ते और अब उसको उनको जलाने के बाद जो है वो सर्दी को जला देगा. इट इज़ सेड सर एज इफ वो सर्दी को जला देगा. एक्चुअल वो सर्दी भाग जाएगी उससे ना, जब वो वहाँ गर्मी हो जाएगी आग की. इन अ शॉर्ट वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेस. थोड़ी ही देर में जो टहनियाँ और जो पत्ते उसने इकट्ठे किए थे वो सब जल रहे थे. इन फ्लिकरिंग लाइट the immense tree of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their head. फ्लिकरिंग होता है कांपती हुई लाइट, जो रोशनी. तो आपने देखा है जब भी हम आग जलाते हैं वो स्ट्रेट तो नहीं जलती है, हिल रही होती है ना वो कैसे. दैट इज़ शिवरिंग. वो लाइट कैसे जैसे कैंडल आप जलाते हो तो जो उसकी फ्लेम है दैट लुक्स लाइक इफ इट्स मूविंग. सो द इमेंस ट्री. तो उसकी रोशनी में, वो हिलती हुई जो रोशनी थी उसकी आग की, उसमें जो आम के पेड़ थे उस छोटे से बाग में, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने हेड के ऊपर बहुत डार्कनेस का बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने उठा रखा है. बिकॉज वो रोशनी में थोड़े नज़र आ रहे हैं एंड अबव देम इज़ ऑल डार्क. Halku sat before the fire and let it warm him. After a while, he took off his shawl. थोड़ी देर के बाद उसने अपना शॉल भी निकाल दिया बिकॉज उसको थोड़ा वार्म फील हो रहा था. Then he spread out both feet as though challenging the cold to do its worst. तो फिर धीरे धीरे उसने अपने पैर भी फैला दिए, अपने पैरों को भी उसकी थोड़ी गर्मी देने के लिए उसने एज इफ ही इज चैलेंजिंग द कोल्ड. अब वो सर्दी को चैलेंज कर रहा है कि क्या कर सकती हो तुम, और जो कर सकती हो कर लो, मैंने तो आग जला ली है ना. ही वॉज नॉट फीलिंग कोल्ड. विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रम्प. तो वो बहुत प्राउड फील कर रहा था कि देखो अब मुझे सर्दी नहीं लग रही है. विक्टोरियस, जब आप जीतते हो किसी चीज़ से तो उसने इस सर्दी से जीत लिया था फॉर टाइम बिंग. ऐसा फील हो रहा था उसको दैट ही इज़ वॉन दैट फाइट. ही सेड टू जैबरा, वेल जैबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू. तो वो जाबरा को भी बोलता है, जाबरा अब तो तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है ना, सर्दी अब तो भाग गई है बिकॉज वहाँ फायर है. जाबरा भाग्ड एज दो टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ. तो जाबरा ने भी उसको थोड़ा सा भौंक कर उसको रिप्लाई किया कि सी मुझे सर्दी नहीं लग रही, कैसे लगेगी सर्दी, अब तो आग जल रही है यहाँ पे. द लीव्स वर ऑल बर्नड अप, डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन. तो थोड़ी देर में आग खत्म हो गई और फिर से वहाँ पूरे डार्कनेस, अंधेरा फैल गया. अंडर द एशेस, तो अ फ्यू एम्बर smolder, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. अब what is embers is जो ashes मतलब राख. ashes के नीचे जो चिंगारियाँ बची हुई थी, जब बहुत तेज़ हवा आई तो फिर से जलने लगी और आग फिर से थोड़ी तेज़ हो गई. Halku sat by the warm ashes humming a tune. तो वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा है, उस गर्म राख के पास वो बैठा हुआ है अभी भी. The fire had warmed thin, but as the cold began to spread, he felt drowsy. तो अभी थोड़ी गर्मी थी उस आग की और सर्दी फिर से अपने पैर पसारने लगी थी और he felt drowsy. Drowsy is what? जब आपको नींद आने लगती है. तो यू ऑल हैव नोटिस्ड बेटा, जब आपको बहुत सर्दी लगती है और आपको अचानक से क्विल्ट मिल जाए, गर्मी थोड़ी मिले, तो यू ऑल्सो फील लाइक स्लीपिंग ना. तो सेम वे, और वैसे भी रात का समय है, ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी. पहले तो वो सर्दी की वजह से सो नहीं पा रहा था, बट अब उसको आग की गर्मी मिली है तो ही इज़ फीलिंग ड्राउसी. ड्राउसी इज़ व्हेन यू, आपकी आंखें ज़बरदस्ती बंद होती हैं नींद से. ही वॉज फीलिंग ड्राउसी. जाबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टूवर्ड्स द फील्ड. अब जाबरा बहुत ज़ोर से भौंकता है और खेतों की तरफ को दोबारा भागता है. हल्कू रियलाइज्ड दैट दिस
meant a pack of wild animal had probably broken into the field. अब ये बात हल्कू को समझ आ चुकी है कि अगर वो कुत्ता ऐसे भौंकते हुए चिल्लाते हुए एकदम से गया है, इसका मतलब जो जंगली जानवर हैं उन्होंने खेतों पर हमला कर दिया है. Those wild animals, they have attacked the fields. अब वो क्या करेंगे, सारी फसल जो है उसको बर्बाद कर देंगे. They might be blue buck. Blue buck is an animal. अगर आपने शायद देखा हो बेटा, आपके एरिया में है या नहीं, आई डोंट नो. नील गाय जिसको बोलते हैं, आई थिंक, तो ये नील गाय की बात कर रहे हैं जिसके लंबे सींग होते हैं. इट्स लिटिल बिट ब्लूइश ग्रेइश इन कलर. दे माइट बी ब्लू बक. अब ये बात हल्कू सोच रहा है बैठे बैठे. दे मस्ट बी ग्रेजिंग. ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग. निबलिंग इज चबाना किसी चीज़ को, तो उसको चबाने की आवाज़ें भी देखो आ रही हैं, बट ही हैड नॉट मूव्ड. He thought, no, with Jabra around, no animal can get into the field. He'd rip it to shreds. Now he's saying, अब इस कुत्ते के सामने तो आपने देखा होगा जब गाय के पीछे या किसी जानवर के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं तो what they does is they run. वो अटैक नहीं करते हैं आगे से. तो कुत्ता वैसे भी खेत की रखवाली के लिए था. Jabra was just to keep an eye. He was a watchdog. तो ही फेल्ट के नहीं, इसके होते हुए तो नुकसान नहीं कर पाएंगे, जाबरा उनको भगा देगा और उनको इतना मतलब रिप इनटू श्रेड्स इज मीन्स उनको जब हम किसी बड़ा जानवर कोई किसी छोटे जानवर पर अटैक करता है तो उसकी स्किन फाड़ देता है. आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, जो बड़ा शेर होता है जो वो छोटे जानवरों को खाता है, किसी हिरन को खाता है या किसी छोटे खरगोश को या इस तरीके के कोई भी एनिमल्स को जब वो अटैक करता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल. सो श्रेड्स इज कतरन कर देना, जैसे बिल्कुल जैसे हम कपड़े को फाड़ के कर देते हैं उस तरीके से. तो ये हल्कू सोच रहा है कि नहीं नहीं, जाबरा के होते हुए तो वो खेतों में नुकसान ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, तो जाबरा उनको छोड़ेगा ही नहीं. आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन. नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल. अब वो खुद को समझा रहा है, नहीं मुझे गलत फहमी हुई होगी. देयर इज़ नो साउंड एट ऑल. मुझे कोई आवाज़ अब आ भी नहीं रही है, तो अगर कुछ होगा भी तो जाबरा के होते हुए तो जानवर आएंगे ही नहीं, क्योंकि जाबरा से सब जानवर डरते हैं, बड़े जानवर. ही शाउटेड, जाबरा जाबरा. अब हल्कू अपने कुत्ते को आवाज़ देकर बुला रहा है. जाबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम. जाबरा जो है वो भौंकता रहा और वो वापस नहीं आया. देन अगेन देयर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड. फिर दोबारा से उसको खेतों में से आवाज़ आती है किसी चीज़ के घास फूस खाने की, और पैरों से किसी चीज़ को कुचलते हैं खेतों के फसल को ख़राब करने की, वो सब आवाज़ उसको आ रही है, मंचिंग एंड क्रंचिंग. ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम. अब इस बार तो उसको गलती नहीं लगी है. इट रियली हर्ट्स टू थिंक ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज. तो ये सोचकर ही कि मुझे इस जगह को छोड़कर, गर्म जगह को छोड़कर उठना पड़ेगा, उसको बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ का. It really hurts to think of getting up from where he was. It was so comfortable there, it seems intolerable to go to the fields in this cold and chase after animal. He didn't stir. तो वो हिलता ही नहीं है वहाँ से, बिकॉज उसका मन ही नहीं कर रहा है उस आग के पास, गर्मी के पास से उठने का, और वो नहीं चाहता कि वो खेतों में जाए, जानवरों के पीछे भागे, और वो आलस उसको एक घेर लेता है और वो वहाँ से नहीं हिलता है. He shouted, "Hilo, hilo, hilo." Zebra started barking again. Zebra फिर से भौंक रहा है. There were animals eating his fields just when the crop was ready. तो वो जानवर उसके खेतों को खा रहे थे, और कब खा रहे हैं? सी फील्ड द क्रॉप वॉज ऑलमोस्ट रेडी. हार्वेस्ट के लिए रेडी थी वो, फसल कटने ही वाली थी, और अब सारे खेत को तबाह करने के लिए वो जानवर आ गए हैं. What a fine crop it was. बहुत अच्छी फसल इस बार हुई थी. And these cursed animal were destroying it. Cursed होता है जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं. Cursed animal were destroying it. तो वो जानवर जो है उसको तबाह कर रहे हैं. Destroying is to do harm, और उसको पूरी तरीके से उसको ख़राब कर देना, destroy कर देना या damage कर देना. So they were damaging the crops now. Within a firm resolve, he got up and took a few steps. फिर भी अपने आप को वो मजबूत करके वो खड़ा होता है और 2-4 कदम आगे जाता है. But suddenly a gust of wind pierced him. अचानक उसको तेज़ हवा जो सर्दी की है वो pierced him is आर पार होना. With a sting like scorpion, so he went back and sat again. अब उसको
जैसे स्कॉर्पियंस का जो स्टिंग होता है, मतलब बिच्छू के डंक की तरह है, वो हवा उसको लगती है और वो वापस आता है और बैठ जाता है. Where he sits by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. अब वो बुझ चुकी आग के पास ही आके बैठ जाता है क्योंकि कुछ गर्मी तो वहाँ थी. और what he does is वो उसमें हवा लगती है, उसको फायर को फिर से हिलाता है ताकि वो उसकी बॉडी को गर्म करे. Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. Ashes is what? राख. तो उसकी बची हुई जो राख थी उसी के पास वो बैठा रहता है ताकि उसके बॉडी को गर्मी मिले. His drowsiness held him motionless. तो उसका जो नींद में वो ऊँग रहा है और उसको motionless is when you cannot move. तो वो हिल ही नहीं पा रहा उस नींद की वजह से, as though with ropes. ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को बांध दिया है उस गर्मी ने, रस्सियों से बांध दिया और वो हिल ही नहीं पा रहा. Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes. तो wrapped in the shawl, वो शॉल लपेटे हुए था और उस ग्राउंड के ऊपर ही लेटे लेटे उसको नींद आ गई क्योंकि उसको थोड़ी गर्मी लग रही थी और वो सोया भी नहीं था बेचारा पूरी रात से इतनी सर्दी में, तो उसको नींद आ गई, आंख लग गई. When he woke up in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day?" तो मुन्नी अब उसको बोल रही है, उसकी वाइफ वहाँ आ गई है, वो बोल रही है कि क्या तुम्हें लग रहा है तुम सारा दिन सोते ही रहोगे. उसके सर पे मुन्नी खड़ी हुई है और सूरज भी उसको दिख रहा है कि चमक रहा है. वो बहुत लेट सोया होगा तो इसलिए आंखें भी बेचारे की नहीं खुल पाई. You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. तो तुम यहाँ आकर बड़े मज़े कर रहे थे और तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम आराम से सो रहे हो और पूरी खेत उन्होंने फ्लैटेंड इज बिछा देना, तो पूरा खेत फ्लैट कर दिया जानवरों ने, मीन्स खाली कर दिया, और जो था उसके ऊपर वो निकलते हैं तो पत्ते क्रश हो गए तो वो सारी फसल जो है बिछ गई है ज़मीन पर, बची खुची जो थी. हल्कू गॉट अप एंड सेड, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड. तो क्या तुम खेतों की तरफ से ही आई हो? उसको ये भी नहीं पता कि वो सो कहाँ रहा है बेचारा, ये भी भूल गया. वो इतना ज़्यादा वो थका हुआ है और इतना परेशान बेचारा वो था. येस, द होल फील्ड्स ruined एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट. तो वो बोलती है हाँ देखो पूरा खेत तबाह हो गया और तुम ऐसे सो रहे हो यहाँ पे. वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनी वे. तो तुमने यहाँ पर अपना शेल्टर लगाया ही क्यों था जब तुमने सोना ही था, ध्यान ही नहीं रखना था फसल का. तो यू शुडंट हैव पुट दिस शेल्टर ऑन. हल्कू sought an excuse. I nearly died and just managed to get through the night and you worry about your crop. तो बोलता है मैं मरते मरते बचा हूँ, इतनी सर्दी थी, कैसे मैंने अपने आप को बचाया है उस रात ठंड से, इस रात वाली ठंड से, और तुम्हें खेतों की टेंशन हो रही है, तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है, तुम फसल की चिंता कर रही हो. वो एक्सक्यूज़ दे रहा है बेचारा अपनी तरफ से. Then the two of them walked to the edge of their land. तो वो पूरे खेत का चक्कर काटते हैं, लगाते हैं. He looked the whole field had been trampled. तो वो देखता है कि पूरी खेत जो उसका सारी फसल जो है उसकी तबाह कर चुके हैं वो जानवर, कुछ भी बचा ही नहीं है. Munni's face was shadowed with grief but Halku was content. तो मुन्नी का चेहरा तो बहुत उदास हो चुका था क्योंकि नुकसान हो गया. अब तो वो खेत के जो मालिक है उसको भी कुछ दे नहीं पाएंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे अपना सारा टाइम. ये मुन्नी बहुत उदास है लेकिन हल्कू के फेस पे एटलीस्ट कंटेंट है, मीन्स उसको थोड़ा सब्र है उसको इस चीज़ का. वाई इज़ दैट सो. मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस. अब ज़मीन का जो खेती जो उसने करी है उसका तो उसको रेंट देना पड़ेगा, फसल तो तबाह हो चुकी है, लेकिन लैंडलॉर्ड तो पैसे लेने आएगा ही. अब उसको क्या करेगा, किसी न किसी के पास उसको एज ए लेबर काम करना पड़ेगा और जो पैसे वो कमाएगा वो टैक्स और लैंड के रेंट के रूप में देने पड़ेंगे. अभी भी बेचारों को खाना तो पूरा मिल ही नहीं पाएगा. With a contented smile, Halku said, "But I won't have to sleep nights out here in the cold." तो हल्कू बोलता है चलो कम से कम मुझे सर्दी में बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा. ठीक है, पूरा दिन मैं मजदूरी करूँगा, किसी और के लिए काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे रात को बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा, मैं घर में चैन से रात को सो तो सकूँगा सर्दी से बचाकर खुद को. ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर. This was a translated version of Munshi Premchand's story, Poos Ki Raat. As I told you, if you all had seen this story on YouTube, it is a very beautiful story. So I'll be sending you the questions and answers also of this chapter today.
So please complete your notebooks neatly, tidily, very beautifully in a handwriting which could be understood. So we'll do a next chapter in the next class. Maybe I'll be asking you all questions. Let me see your phone numbers and I'll be calling each of you if I can. So if you all have any problem, call me on my number. It's